what Avery, MacLeod and McCarthy did, they created a furor in the world of molecular biology. So actually, before Avery, MacLeod, McCarthy, everybody was searching into classical genetics. Everybody was working about what is gene, what is DNA, what is protein, इस तरह से. एंड आपको मालूम है 1944 में एवरी मैक्लियोड मकार्टी ने अपना रिजल्ट दिया एंड they almost extracted pure DNA, but the model of double-stranded DNA came 9 years after their work. That is by James Watson and Francis Harry Compton Crick. तो समझ में आया? तो तब मानने कौन इन दिस केस आपका जो माने एवरी मैक्लियोड मकार्टी है, दे इनिशिएटेड ए न्यू एरा टू डेवलप. क्योंकि वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग केमिस्ट्री की दुनिया में घूम रहे थे. दे आर सर्चिंग आफ्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए. मेंडल, मॉर्गन ये लोग क्लासिकल एस्पेक्ट, ह्यूगो डिवराइज, म्यूलर ये लोग क्लासिकल एस्पेक्ट में घूम रहे थे. So they were searching what? They were searching the cell aspect. What is gene? What is nucleus? Where it is located? How it is packaged? How it is protected? Etc. 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 But जैसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया, जैसे एवरी मैक्लियोड मकार्टी का एक्सप्लेनेशन दिया कि एक्चुअली उससे पहले लोग क्या सोचते थे? जेनेटिक मटेरियल स्टैटिक है, ऑर्गेनिज्म स्टैटिक है. बट एवरी मैक्लियोड मकार्टी एंड ग्रिफिथ ने एक नया चीज को जागृत कर दिया कि वी कैन चेंज फॉर्म्स, वी कैन चेंज ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस आता है तो ऑर्गेनिज्म बदल जाता है. तो देन केम ए न्यू वर्ड of gene expression, how a gene expresses, what a gene does. तो अब ये एक नया फील्ड प्रूव हुआ. But still I told you that Avery MacLeod McCarthy did not get the due regards because one of the reason is उस समय एक वायरस लॉबी जन्म ले लिया था. And these people, they were working on viruses. Okay, and they criticize Avery MacLeod McCarthy. उन्होंने बोला कि भाई देखो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका डीएनए ही निकला है. There may be something hidden जो शायद आप ट्रेस नहीं कर पाए, आपके मेथड से you could not find out. So how are you so sure that it is DNA? So that is why the new group of scientists that is called Alfred Hershey and Martha Chase, they came to limelight. समझ में आया? तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नई beginning. Okay, they did a new beginning. Again, they were proving the what? That it is the genetic material. So that is why so Hershey and Chase experiment. Okay, तो इसको हम लोग Hershey and Chase experiment बोलते हैं. Yeah, so this is also known as Blender's experiment. Okay, this is also known as Blender's experiment. And why did we call it Blender's experiment? We have already discussed, because they used Waring's blender. Okay, so this is also known as Blender's experiment because they use मिक्सी. ब्लेंडर का मतलब होता है मिक्सी. Waring कंपनी का blender, that is called Waring's blender. Okay, so this is also known as Blender's experiment, and they were a series of experiments conducted in 1952 by Alfred Hershey and Martha Chase. Okay, that helped to confirm that DNA is the
जेनेटिक मटीरियल। तो उसके पीछे अब दे डिड नॉट लीव एनी टेल। आई टोल्ड यू ना, इफ यू लीव टेल्स पीपल विल कैच इट। तो इसीलिए they did not leave any tails. Now, while DNA had been known to biologists since 1869, many scientists still assume that the time that proteins carried the information for inheritance, because DNA appeared to be an inert molecule, and since it is located in the nucleus, its role was considered to be phosphorus storage. तो पहले हम लोग सोचते थे कि डीएनए फास्फोरस का स्टोर है। In their experiments, Hershey and Chase showed that when bacteriophages, which are composed of only DNA and protein, याद है कि नहीं? So actually, why they did not appreciate Averymacleod McCarty? क्योंकि उसमें कुछ और केमिकल होगा, शायद हमारे नजरों से ओझल होगा, बट इसमें सिर्फ क्या है? डीएनए एंड प्रोटीन। So in fact, bacteria, their DNA enters into the host cell, but most of their protein does not. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं। Hershey and Chase subsequent discoveries all serve to prove that DNA is the hereditary material. ठीक है, तो वो उसको साबित करने में मदद किया। Now, he was awarded the Nobel Prize also. So Hershey shared the 1969 Nobel Prize with Max Delbruck and Salvador Luria for their discoveries of concerning the genetic structure of viruses. उनको indirectly उसको मिला, तो Max Delbruck and Salvador Luria के साथ Chase was not given. Okay, चलिए, तो ये उसका बेसिक बैकग्राउंड है ना। थोड़ा सा बैकअप वर्क हम लोग कर लेते हैं, तो जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, दैट so in the early 20th century, biologists thought that proteins carry genetic information. This was based on the belief that proteins were more complex than DNA. क्यों? 20 to the power n. Phoebus Levin's influential tetranucleotide hypothesis, which incorrectly proposed that DNA was a repeating set of identical nucleotides, supported this conclusion. कि वो बोलने लगा कि भाई उतना वेरिएशन नहीं होता है। The results of Averymacleod-McCarty's experiment suggested that DNA was the genetic material, but there was still some hesitation within the scientific community to accept this, which set stage for this experiment. Okay, क्योंकि लोग उसको मान नहीं रहे थे, इसीलिए उनको ये लेना पड़ा। Now, what is the technique they used? Okay, तो उस टेक्निक को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे थोड़ा स्टाइल से। Now, technique used is, सुनिए, the biggest problem is, ना तो आप इक्वलाई देख सकते हो, ना ही आप वायरस देख सकते हो। Then how to conclude? तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई क्या देखें हम, कुछ तो दिख नहीं रहा, बट एक चीज है जो इक्वलाई है, वो वायरस से 40,000 to 50,000 टाइम्स हेवियर है। तो अगर ये 40 से 50,000 गुना भारी होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, बट तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, आपका बैक्टीरिया वायरस अलग होगा। डीएनए के बारे में कैसे जानोगे, या प्रोटीन के बारे में कैसे जानोगे? तब इन्होंने सोचा कि जो डीएनए है, डीएनए में फास्फोरस होता है, बट प्रोटीन्स में जनरली फास्फोरस नहीं होता। उसी तरह से प्रोटीन्स में सल्फर होता है, बट डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स लें
तो हम डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन्स को रेडियो एक्टिविटी यूज कर स्टडी कर सकते हैं. So that is why this technique is called radioactive, okay, radioactive buoyant density centrifugation. Okay, now radioactive buoyant density centrifugation. Now what is buoyant density आपको मालूम है? जैसे डीएनए है, डीएनए से नीचे जैसे हम लोग सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो भारी चीज क्या होता है, वो टुवर्ड्स ग्रेविटी जाता है, बट डीएनए इज वेरी लाइट, तो इसलिए डीएनए जनरली बैठेगा नहीं, उसको फ्लोट करना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड योर buoyant डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन. ओके, नाउ हाँ बोलो buoyant, हाँ बोलो बोलो टेल, बोल भी दो. So the technique used is buoyant density gradient centrifugation. Actually क्या है, अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो डीएनए बैठेगा नहीं. आपका कितना डीएनए होता है, पिकोग्राम. पिकोग्राम माने 10⁻⁻12 ग्राम. अगर तमे गोटे अटार गोटे दाना नब, इफ यू टेक ओनली वन दाना ऑफ आटा, उसमें भी 1000 से ज्यादा इंसानों का डीएनए होगा. इमेजिन द वेट ऑफ वन दाना ऑफ आटा, नॉट गेहूं, इक्वल्स टू 1000 पीपल्स डीएनए, माने ऑफ ईच सेल. तो 1000 cells DNA. तो imagine it is so light. तो light things don't go down. So इसलिए हम लोग buoyant density centrifugation use करेंगे. But we will create a gradient. तो gradient मतलब अलग अलग concentration का बनाएंगे. So cesium chloride, okay, cesium chloride density gradient tubes were taken. Again, why you have used cesium chloride? Because it is inert. Was taken because वो नॉन इंटरफियरिंग होता है. ओके, सपोज आप कुछ लोगे जो इंटरफियर करेगा तो कैसे होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब्स बनाएंगे एंड उसमें डीएनए को फ्लोट कराएंगे. भले भले, चलिए. तो टेक्निक यूज्ड इज योर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन. नाउ स्पेसिमेन यूज, तो उन्होंने कौन सा स्पेसिमेन यूज किया, तो दे सिलेक्टेड 2 स्पेसिमेन. नंबर 1 Escherichia coli. A lot of people have a tendency of writing only E. coli. Being biology students, you should not do such a big mistake. क्योंकि E. coli एंटामीबा कोलाई भी हो सकता है कि नहीं, इसलिए ऑलवेज राइट एस्केरेशिया कोलाई. हम लोग कप में E. coli लिख देते हैं क्योंकि हम 1000 बार लिख चुके हैं. ओके, and number 2 is T2 बैक्टीरियोफेज. तो क्यों आपने लिया बैक्टीरियोफेज, because it has DNA core. Okay, it has double stranded DNA core and a proteinaceous capsid. Okay, there is no third compound. तो इसलिए यहाँ डाउट का कोई सवाल ही नहीं होता. सो इसमें आइदर आपका डीएनए होता है या आपका क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है.
Understood? So this is the specimen they used. चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो एक्चुअली वी हैव टू प्रिपेयर, है कि नहीं? तो उनका मकसद क्या था? सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव दैट डीएनए is the genetic material of T2 phage. Okay, to prove that DNA is the genetic material of T2 phage. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अंडरस्टूड? चलिए, सो क्लियर नाउ. इसलिए आपको कुछ पूछना है, अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट है एंड आगे चलेगा. बोलो. No, sir, nothing. You know how much time E. coli needs to divide? Sir, 20 minutes. Yes. हाँ बोलो. 20 minutes. Yes. So actually, according to your NCERT, आपका E. coli needs 20 minutes to replicate. तो ये आपको याद रखना है. Okay. So this is what we have to do now. तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? उनका बैक्टीरियोफेज बनाएंगे. Okay. So now इसलिए उन्होंने आपका थियोरी, व्हाट इज द थियोरी? थियोरी क्या है एक्सपेरिमेंट का? नंबर 1, तो सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी है दैट द DNA and proteins are so small in size that our naked eye cannot resolve them. Full stop. It is also very small for क्या? लाइट माइक्रोस्कोपी. ठीक है, तो इसलिए लाइट माइक्रोस्कोपी यूज करके भी हम नहीं देख सकते. Hence, okay, hence the only parameter that can be used to separate E. coli and T2 phage was its size. Okay, was its size. The E. coli is nearly 40,000 to 50,000 times heavier than virus. Okay, than virus. So centrifugation technique can be used. Okay, can be used to separate them. Can be used to distinguish them. ठीक है, कैसे बताइए? On centrifugation, the क्या होगा? Virus being lighter will be found in the supernatant. है कि नहीं? Virus being lighter will be found in the supernatant, whereas the bacteria being heavier, okay, whereas the bacteria being heavier will always be found in the pellet. ठीक है जी? तो ये आपका थ्योरी है.
तो इसका मतलब है कि जब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके, सो वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड उसमें जो सॉल्यूशन लेंगे एंड इसमें आपका जो वायरस लेंगे एंड ई कोलाई लेंगे, ओके, एंड इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये ट्यूब में इस तरह से नीचे बैठ जाएगा पैलेट, है कि नहीं? सो द पैलेट विल बी सेटलिंग डाउन, है कि नहीं? तो पैलेट आपका नीचे बैठ जाएगा एंड उस पैलेट में आपको क्या मिलेंगे? ई कोलाई। फाइन, तो यू विल फाइंड द ई कोलाई इन द पैलेट। नाउ ऊपर आपका तैरेगा क्या? सो ऊपर यू विल फाइंड द फ्लूइड्स। सो दिस इज कॉल्ड द सुपरनेटेंट एंड उस सुपरनेटेंट में आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द वायरस। ओके, आप वायरसेस इसमें पाएंगे। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। इसमें ए या ई यूज होता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड पैलेट। पेलेट्स। तो पैलेट में आपका ई कोलाई आ गया एंड सुपरनेटेंट में आपका T2 फेज आ गया। तो ये थ्योरी नंबर 1 है। बोले बोले। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी नंबर 2। तो इससे हमने क्या किया? दिस इज हाउ वी विल सेग्रीगेट द वायरस एंड डीएनए। बट डीएनए प्रोटीन है कैसे जानोगे? सो टू डिस्टिंग्विश between DNA and proteins, centrifugation, okay, between DNA and proteins, only centrifugation technique is not fruitful because both are very light as compared to even viruses, है कि नहीं? वो काफी हल्के होते हैं। So they thought of radioactivity, ओके। नाउ तो इसीलिए डीएनए हैज फॉस्फोरस बट नो सल्फर, है कि नहीं? सो P32 can be used to make DNA radioactive, है कि नहीं? उसी तरह से प्रोटीन्स, ओके। नाउ प्रोटीन्स Has sulfur but have, not phosphorus. yes, have sulfur but rarely phosphorus। आपका फॉस्फोप्रोटीन्स कौन सा होता है? मिल्क प्रोटीन्स, बट जनरली उसमें नहीं होता है, बट रेयरली फॉस्फोरस। सो S35 can be used to make the क्या? To make the protein, DNA radioactive. but protein radioactive, ओके। सल्फर दे रहे हैं ना, तो डीएनए कैसे होगा? हाँ सर, तो मेक निकल द गया। प्रोटीन रिएक्ट, समझ रहे हो? तो ये थ्योरी नंबर 2 है। नाउ थ्योरी नंबर 3 क्या है?
the DNA is so light that it will not settle down due to gravity. Okay, due to gravity. Okay, so buoyant density gradient centrifugation technique was used. Okay, so buoyant density gradient centrifugation technique was used. Now, जैसे मैंने आपको उस दिन, if you remember, जब हमारा हाफ ईयरली मार्क्स आया था, तो मैंने आपके साथ क्या किया था? बोलिए। आपको मैंने मार्क वाइज बिठा दिया था, है कि नहीं? तो उसी को कहते हैं मार्क बेसिस सेंट्रीफ्यूगेशन। इसलिए आप याद है कि नहीं? तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड उसमें अलग अलग ग्रेडियंट का सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाएंगे। फाइन। तो सपोज इसमें हमने 10 ग्राम्स डाला। ओके, ये सपोज 10 ग्राम्स, 9 ग्राम्स, 8 ग्राम्स, 7, 6, 5, 4 एंड सो ऑन। तो आपका ये सपोज 10 ग्राम्स इन 100 ml है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 10% सोल्यूशन, 9% सोल्यूशन, 8% सोल्यूशन एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड ए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे, डीएनए को छोड़ देंगे। फाइन। तो डीएनए क्या है, अब आप उसको डीएनए को देंगे, दिस इज द डीएनए, एंड आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। तो वो क्या करेगा, वो जिस बैंड को होगा उस बैंड में जाके जमा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सपोज दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5। ओके, सपोज इज 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5। तो अगर आपका डीएनए आके 7 बैंड में बैठा, सो दिस इज योर डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू अपना डेंसिटी ऑफ डीएनए बैठ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड buoyant डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। नाउ तो अब हम लोग लेंगे क्या, आपका वायरस एंड आपका क्या, वी विल टेक द वायरस एंड विल टेक द बैक्टीरिया। रेडी? तो यू अंडरस्टैंड द थ्योरी नाउ। अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन। प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है जी। तो हाउ वी विल बी क्रिएट, तो उसमें लिखिए नंबर 1, तो रेडियो एक्टिव viruses were made by first making 2 sets of radioactive bacteria. Okay, first making radioactive bacteria. Okay, कैसे? क्योंकि वायरस को आप कल्चर नहीं कर सकते, ये याद रखना, इसलिए वायरस डायरेक्टली नहीं बना सकते। मेकिंग 2 sets of radioactive bacteria. Number 1, making them grow in S35 culture. Okay, तो S35 कल्चर, इसका मतलब क्या है, आप लोग वहां जो भी सल्फर देंगे सिर्फ S35 होगा। S35 कल्चर में ना ब्रैकेट में देयर शुड बी नो S32 सल्फर। ओके, तो देयर शुड बी नो S32। नॉर्मल सल्फर क्या होता है? S32। नो
sulfur. Okay, so there should be no S32 sulfur. उसको हम लोग नॉर्मल सल्फर बोलते हैं. तो आप कल्चर मीडियम ले रहे हो तो ऐसा करना पड़ेगा. फिर नंबर 2, मेकिंग them grow in P32 culture. Okay, bracket में where there is no क्या phosphorus 30/normal phosphorus. अंडरस्टूड. तो इसीलिए आप रेडियो एक्टिव में करेंगे. ठीक है जी. तो उसमें फ्रॉम हाँ बोलिए. P31 हाँ नॉर्मल P31 है तो 31 लिख लो. वो दैट यू हैव टू टेल मी फ्रॉम केमिस्ट्री. तो फ्रॉम S35 कल्चर द E. coli that were obtained. Okay, from S35 culture, the E. coli that were obtained had their dash radioactive. Had their क्या? Proteins radioactive with S35. समझ रहे हो? ये समझ में आया कि नहीं? कहना ये सब आपको आकाश में नहीं बताएंगे क्योंकि वो सीधा वायरस ले आएंगे. अरे वायरस तुमको कहां से मिल गया? ये कोई मार्केट में मिलता है? क्योंकि वायरस कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर. वेयर डिड यू गेट ए वायरस? इसलिए सबसे पहले हमको ई कोलाई को रेडियो एक्टिव बनाना पड़ेगा. तो फ्रॉम S35 कल्चर द ई कोलाई दैट वर ऑब्टेन्ड हैड देयर प्रोटीन्स रेडियोएक्टिव विद S35. उसी तरह हम लिख सकते हैं फ्रॉम P32 culture. Okay, from P32 culture, the E. coli that obtained had their क्या? DNA radioactive with P32. Okay, तो ये समझ में आ गया. अब हम दूसरा स्टेप यूज करेंगे. Now fresh T2 phages were made to क्या? Made to act on these two new E. coli separately. Okay, so now fresh T2 phages, okay, fresh T2 phages were made to act upon these two new E. coli, but अलग-अलग new E. coli separate. समझ में आया? तो इससे क्या आपको मिलेगा? देखिए now इतना दुखी करता है ना मेरे को ये. सो नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो सपोज ये हमारा S35 कल्चर है. तो इधर से आपको जो बैक्टीरिया